Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today I am going to teach you the first chapter of SST. The name of the chapter is Our World. In this chapter, we will learn about Earth, the shape of Earth, globes, maps, continents and oceans. We will learn about latitudes and longitudes as well. Let's start with the reading of the chapter. As we all know that we live on planet Earth. It is our world. There are many things which make Earth a unique planet. Now, open chapter number 1, which is at page number 198 of your crust book. I hope you all have opened the chapter number 1. Let's get started with the reading of the chapter. Firstly, we will learn about the shape of the earth. We will learn about the shape of the earth. हमारी अर्थ देखने में कैसी है, उसकी शेप क्या है. In the past, people believed that the earth was flat. पहले पास्ट में लोग क्या बिलीव करते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है. They were of the view that they sailed in one direction, they would fall off the earth. वे क्या सोचते थे, अगर वो एक ही डायरेक्शन में सेल्ड होंगे, सेल का मतलब होता है चलना, किसी एक ही डायरेक्शन में रवाना होना, they would fall off the earth. After many years, an explorer, Ferdinand Magellan, sailed across an ocean in one direction and proved that the earth was round in shape. Earth was round in shape. Please underline the word sailed here. कई सालों बाद एक एक्सप्लोरर जिनका नाम फ्रेडिनेंड मैगलन था, प्लीज़ अंडरलाइन करें, फ्रेडिनेंड मैगलन. वो एक एक्सप्लोरर थे. उन्होंने क्या किया, एक ही डायरेक्शन में चलकर रवाना होकर एक ही डायरेक्शन में ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप राउंड है. Now please come on the page number 199. The actual shape of the earth is often said to be an oblate spheroid. Please underline करें word oblate spheroid. हिंदी में इसको बोला जाता है चपटा. It's like a shape. It's like sphere but not perfectly spherical body. Okay, the actual shape of the earth is often said to be an oblate spheroid. यानी कि हम actual shape अपनी अर्थ की क्या मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, जो एक्चुअल शेप है हमारी अर्थ की वो क्या है, चपटी शेप है जिसे हम ओब्लेट स्फीरियोइड कहते हैं. दिस मीन्स दैट द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली राउंड. इसका मतलब क्या है, जो हमारी अर्थ है वो एग्जैक्टली राउंड शेप की नहीं है. रेदर इट इज़ ब्लगिंग इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. प्लीज़ अंडरलाइन करें वर्ड ब्लगिंग. रेदर इसकी शेप कैसी है, ये उभड़ा हुआ है मिडल से एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप and the bottom. Now we will study about globes and maps. You can see the picture of globe in your book and you can see it
at your screen as well. The globe is here. Now let's get start with the reading. Take a map and a globe and say which one represent the shape of the earth accurately. Today we have map and globe that show us places and things on the earth. मैप और ग्लोब क्या करते हैं, वो हमें अर्थ के ऊपर प्लेसेस शो करते हैं, यानी कि वो एक हमें सारा का सारा हमारे अर्थ का डिस्क्रिप्शन देते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्लोब. A globe is 3-dimensional model of the earth. एक 3-dimensional model है अर्थ का. प्लीज़ अंडरलाइन करें, 3-dimensional model of the earth. As the earth is so large, we cannot look at it as a whole. अर्थ बहुत बड़ी है, हम एक ही बारी में पूरी की पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. The globe represent the earth as it looks from space. जो ग्लोब होता है वो हमें कैसे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जैसी हमारी अर्थ स्पेस से हमें दिखाई देती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट मैप. अ मैप इज़ अ फ्लैट एंड 2-dimensional ड्राइंग ऑफ द एंटायर और अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ. लेट्स सी द डिफरेंस. दैट ग्लोब वी हैव 3 dimensions. अ मैप, इन मैप वी हैव फ्लैट एंड 2-dimensional ड्राइंग ऑफ द एंटायर और अ पर्टिकुलर, यानी कि या तो पूरे के पूरी अर्थ का मैप होगा या फिर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पोर्शन का, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ हमें शो होता है मैप में. इट कैन शो ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन डिटेल एट वन टाइम. जो हमारा मैप होता है वो हमें एक बारी में सिर्फ एक ही अर्थ के सरफेस की सरफेस को डिटेल में दिखाता है एक टाइम पर. मैप्स आर ईजियर टू कैरी. जो मैप्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं कैरी करने में. दीज आर वेरी ईजी टू कैरी. अ पर्सन हु मेक्स मैप इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. प्लीज़ अंडरलाइन करें वर्ड कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स को बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर. जो एटलस होती है वो क्या होती है, एक बुक होती है डिफरेंट मैप्स की. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब्स एंड मैप्स. फर्स्टली ग्लोब. अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ अर्थ. जो ग्लोब होता है वो स्फेरिकल होता है, रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ अर्थ. मैप क्या होता है, अ मैप इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो मैप होता है उसको क्या फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया गया होता है. इट डज़ नॉट शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ. ये एग्जैक्ट शेप अर्थ की नहीं बताता. जो मैप होता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट शेप अर्थ की नहीं बता पाता. नाउ कम विद द सेकेंड पॉइंट ऑफ ग्लोब. इट कैन बी यूज टू लोकेट वेरियस कंटिनेंट्स एंड मेजर सीज एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड. जो ग्लोब होते हैं वहाँ पर हम क्या उस ग्लोब के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं हमारे वेरियस कंटिनेंट्स को, मेजर सीज को, बड़े बड़े सीज को और ओशियंस को, पूरी की पूरे वर्ल्ड के. इन मैप्स इट शो प्लेसेस विद इन द कंटिनेंट एंड कंट्री. लेकिन जो मैप्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमें वही प्लेसेस विद इन द कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज़ ही शो होती हैं. एक कंटिनेंट और कंट्री, मतलब कंटिनेंट और कंट्रीज़ की प्लेसेस ही हमें शो होती हैं. नाउ अ ग्लोब रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ इन लेस डिटेल. एक जो ग्लोब होता है वो क्या करता है, हमें पूरा का पूरा जो अर्थ है बहुत ही लेस डिटेल में रिप्रेजेंट कर देता है. लेकिन अ मैप कैन रिप्रेजेंट आइदर द होल और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन वन डिटेल. अ मैप कैन रिप्रेजेंट, एक मैप क्या करता है, हमें हमारे वर्ल्ड का या हमारी किसी भी कंट्री का या तो पूरी की पूरी कंट्री का या फिर कंट्री के किसी पर्टिकुलर पोर्शन का हमें पूरा डिटेल्ड व्यू देता है. क्या देता है, डिटेल्ड व्यू.
Today we will we will read only 2 chapters of this chapter, only 2 pages of this chapter. I hope I hope rest of the chapter will be explained in the next video. Thank you so much.